Hello students, in this video I am Kumar going to discuss part 2 of important multiple choice objective questions of chapter 8 electromagnetic waves of class 12 physics in lecture 2। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन इन द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ERMS इक्वल टू 6 वोल्ट पर मीटर। द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑप्शन ए 2.83 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला, ऑप्शन बी 0.70 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला, option C is 4 into 10 to power 3 into 10 to power minus 8 Tesla, and option D is 1.41 into 10 to the power minus 8 Tesla। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के EM वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ERMS दिया है 6 वोल्ट पर मीटर। द पिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वह मालूम करना है। तो हम जानते हैं रिलेशन पिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई पिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ E0 बाई B0 इक्वल टू C। देयरफॉर B0 दैट इज पिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज B0 इक्वल टू E0। E0 is the amplitude of electric field component of electromagnetic wave, E0 upon C, and E0 is because since ERMS is equal to RMS value of electric field component, ERMS is equal to E0 upon root 2, therefore E0 is equal to ERMS into root 2। तो E0 के जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं ERMS multiplied by root 2 upon C। C is the speed of light in vacuum, on ERMS is given 6, the 6 root 2 upon a speed of light in vacuum C is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और 6 कैंसिल हो गया 3 से 2 टाइम्स, दैट इज 2 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टेस्ला, एंड वैल्यू ऑफ रूट 2 इज 1.14। तो 1.41 इंटू 2 इज 2.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टेस्ला। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4 इंटू 2 into root 2, that is 2 into 1.4, 2 into 1.4, 2 into 1.2 multiplied by root 2, multiplied by 10 to the power minus 8, 10 to power 8 नीचे में है, ऊपर जाकर के न्यूमरेटर में minus 8 हो जाएगा। तो 2 after putting the value of root 2 1.414 और 1.41 nearly, it gives 2.82 multiplied by 10 to power minus 8 Tesla, and option is A 2.83 into 10 to power minus 8 Tesla। So correct option is A 2.83 into 10 to power minus 8 Tesla। क्योंकि हम लोगों ने डिसमल के केवल 2 प्लेस तक लिया 1.41, तो 1.41 इंटू 2.82, लेकिन 3 प्लेस तक कर लें तो 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो उस सिचुएशन में रिजल्ट हमारा 2 इंटू 1.414, देन रिजल्ट इज 2.83 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2.83 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला। द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इज B0 इक्वल टू 2.83 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए रेडिएशन ऑफ एनर्जी कैपिटल E falls normally on a perfectly reflecting surface, the momentum transfer to the surface is option A 2E by C, where capital E is the energy which falls normally on a perfectly reflecting surface, and after reflection it is reflected back, so option A is 2E by C, option B 2E by C square, option C E upon C square, option D is E by C। तो momentum transfer is to the surface is initial momentum, change in momentum, that is initial momentum minus final momentum। तो momentum transfer that is delta P, small p symbol of momentum, Pi initial momentum minus final momentum, and momentum is E by C,
momentum is E is equal to mc square, and momentum E is equal to P is equal to m into c for light radiation, m into c. Therefore we can write E is equal to mc square, that is mc into c divided by c, we get mc. So E upon c, E is equal to mc square, उसमें c से डिवाइड कर देंगे तो mc square by c, that is mc, which is momentum. The initial momentum is E by c of incident radiation minus final momentum after reflection. The radiation, since radiation is reflected back, then final momentum is minus E by c. रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सो इट इज माइनस ई बाई सी. तो ई बाई सी माइनस ई बाई सी, दैट इज 2e by c प्लस 2e by c. 2e, where e is energy and c is the speed of light in vacuum. So option A is correct, 2e by c. Capital E by c, where e is energy of the radiation and c is the speed of light in vacuum. Now question number 3. The radiation pressure in Newton per meter square of the visible light of the order of विजिबल लाइट का रेडिएशन प्रेशर का ऑर्डर किस ऑर्डर का होगा? न्यूटन पर प्रेशर है तो चूंकि उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल भी होता है ऐसा यूनिट. तो द रेडिएशन प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ द विजिबल लाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी 10 to the power -4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी 10 to the power -6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डी 10 to the power -8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. करेक्ट ऑप्शन इज सी, 10 to the power -6 Newton per meter square. It is a very important multiple choice objective question. Since electromagnetic radiation also exerts pressure, so it is given by P is equal to radiation pressure को P से denote किया जाए, कैपिटल P से, तो P is equal to I by C. I is the intensity of incident radiation by C, and incident intensity, तो formula for radiation pressure is P is equal to capital P is equal to I by C, and I is incident energy per unit area per unit time, that is U upon I is equal to U upon A into T, that is energy which falls normally on the surface per unit area per unit time, which is intensity of radiation. I is equal to U upon U or U upon A is the area multiplied by time. So radiation pressure is of the order of 10 to the power -6 Newton per meter square, which is very small. So some radiation therefore we do not feel solar radiation which falls on our body because its value is very small, of the order of 10 to the power -6 Newton per meter square. And from sun, visible radiations fall upon our body, but we do not feel it because its value is very small. यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे CBSE बोर्ड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020 में पूछा जा चुका है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस, ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू ऑप्शन ए एंड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी प्रेशर ग्रेडियंट. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस, ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज to magnetic field, and also changing magnetic field gives rise to changing electric field. So according to Maxwell hypothesis, a changing electric field gives rise to, option C is correct, magnetic field gives rise to magnetic field. So due to this, electromagnetic radiations are produced. Now question number 5. The velocity of EM wave in free space is 3 × 10 to the power 8 meter per second. The frequency of a radio wave of wavelength 150 meter is option A 45 megahertz, B 2 megahertz, C 20 kilohertz, and D 2 kilohertz. Correct option is 2 megahertz, option B, because velocity of electromagnetic wave in free space 3 × 10 to the power 8 meter per second, and wavelength is also given 1.50 meter. So frequency of radio wave is nu is equal to C upon lambda, and C is 3 × 10 to the power 8 meter per second, and lambda is wavelength is 1.150. Wavelength is 150.
अब 150 और यहाँ 3 इंटू 10 टू पावर 8 है, तो 3 इंटू 10 टू पावर 8 से इसका 2 पावर 10 टू पावर 2 पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 अपॉन 150 दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर 6, 2 इंटू 10 टू पावर 6 हर्ज विच इज 2 मेगा हर्ज. 1 mega is 10 to power 1 mega is 10 to power 6. So 3 into new frequency of frequency is given by a speed of light c by lambda, and c is 3 into 10 to power 8 meter per second, lambda is 150 meter, that is 150 से 300 10 to power 8 से 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो 300 इंटू 10 टू पावर 6 बाई 150 दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर 6, दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर 6 हर्ज विच इज 2 मेगा हर्ज. सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 मेगा हर्ज, ऑप्शन बी इज करेक्ट. और ये भी इंपॉर्टेंट एक फार्मूला बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. Now multiple choice question number 6. Which of the following is not electromagnetic waves? BBI multiple choice objective question. It is एक बहुत important MCQ है. Which of the following is not electromagnetic wave? Option A light waves, B X rays, C sound waves, D infrared rays. So out of these 4 options, only sound wave is not an electromagnetic wave. Remaining all waves, light waves, that is visible lights, X-rays, option B, and option D, infrared red rays, all are electromagnetic waves. Only sound waves are not electromagnetic waves. So option C is correct. Question number 7. Which of the following has minimum wavelength? Minimum or a smallest wavelength? Option A X-rays, option B UV rays, option C gamma rays, option D infrared rays. Out of these 4 electromagnetic radiations given, gamma rays having shortest or minimum or a smallest wavelength. So option C is correct. Question number 8. Which of the following has longest or largest wavelength? Option A X-rays, option B UV rays, option C infrared rays, and option D radio waves. Out of these four options, radio waves or these 4 electromagnetic radiations, radio waves having longest or largest wavelength. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज का वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होता है, एंड रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट होता है. ये दोनों क्वेश्चंस भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज option A 1 cm, option B 1 meter, option C 1 micron, that is 10 to power minus 6 meter, option D 1 angstrom. Correct option is 1 angstrom. एक्सरे का वेवलेंथ का एक्सरेज के वेवलेंथ का ऑर्डर है 10 to power minus 10 meter. वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्सरेज is 10 to power minus 12 meter to 10 to the power minus 9 meter. So 10 to the power minus 10 meter, 1 angstrom is the order of wavelength of X-rays. Now question number 10. Which of the following represents an infrared wavelength? Option A 10 to the power minus 4 cm, B 10 to the power minus 5 cm, C 10 to the power minus 6 cm, and D 10 to the power minus 7 cm. Correct option is A 10 to the power minus 4 cm, that is 10 to the power minus 6 meter. Range of wavelength range of infrared wavelength are far from red. रेड का वेवलेंथ होता है 7.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर. उससे ज़्यादा का वेवलेंथ होना चाहिए, तो 10 टू पावर माइनस 6 मीटर से लेकर 10 टू पावर माइनस 3 मीटर तक. तो वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस आर वेवलेंथ रेंज है इज 10 टू पावर minus 6 meter to 10 to power minus 3 meter, and 10 to power minus 6 meter is 10 to power minus 4 cm in centimeter. So option A is correct.
विजिबल लाइट का वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 10⁻⁻7 मीटर। 4 × 10⁻⁻7 मीटर वायलेट लाइट का वेवलेंथ टू 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर 7800 एंगस्ट्रम, जो कि रेड लाइट का वेवलेंथ होता है। अब रेड लाइट से अधिक लार्जर वेवलेंथ का जो रेडिएशन होगा उसे इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है। तो 10⁻⁻7 मीटर रेड का है, 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर, तो इससे ज़्यादा तो 10⁻⁻6 मीटर, 10�7 मीटर से ज़्यादा वेवलेंथ ऑर्डर का हो गया, तो 10⁻⁻6 मीटर, दैट इज 10⁻⁻4 cm इज द it represents an infrared wavelength. Now question number 11. EM waves of maximum and minimum frequencies in an electromagnetic spectrum are option A gamma rays, radio waves, B option B gamma rays, infrared rays, C gamma rays, UV ultraviolet and radiation, and B violet rays and red rays. तो इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछा गया है इस प्रश्न में, इस मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि EM वेव्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसका होगा, उस रेडिएशन का होगा जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा। तो गामा रेडिएशन का, गामा रेज का वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसका होगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होगा जिसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन का होगा जिसका वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट होगा। तो सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है, तो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी रेडियो वेव्स का ही होगा। सो लॉन्गेस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रेज का होगा जिसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का होगा जिसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए गामा रेज एंड रेडियो वेव्स। गामा रेज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, radio waves minimum frequency. So option A is correct. Now question number 12. The EM waves used in telecommunication are option A ultraviolet rays, B microwaves, C visible rays, D infrared rays. Correct option is microwaves. Wavelength of microwaves is large. Wavelength range of microwaves is large. Therefore it is not diffracted by एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। वेवलेंथ ज़्यादा है, स्कैटरिंग बहुत कम होगा, तो माइक्रोवेव्स आर नॉट डिफ्रेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, सो इट ट्रेवल्स लाइन ऑफ साइट पाथ, डायरेक्ट पाथ। इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड एंड it travels in a straight line from transmitter to receiver. It is not reflected even by ionosphere, so it is also used in satellite communication also. So electromagnetic waves used in telecommunication are microwaves. Option B is correct. Now question number 13. Electromagnetic wave EM waves used in radar system are A option A UV, B gamma rays, C radio waves, D microwaves. ऑप्शन डी करेक्ट है। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार सिस्टम। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बतलाया कि माइक्रोवेव एकदम स्ट्रेट पाथ को, लाइन ऑफ साइट पाथ को फॉलो करता है। वह अपने पाथ में आने वाले मीडियम पार्टिकल्स या कोई ऑब्जेक्ट से डिफ्रैक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि माइक्रोवेव का वेवलेंथ 1 मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁻1 मीटर, जो कि रेडियो वेव के वेवलेंथ से स्मॉल है, लेकिन अदर रेडिएशंस गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा है। तो माइक्रोवेव का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, रेडियो वेव से काफ़ी कम होता है, 1 मिलीमीटर के ऑर्डर का, लेकिन अदर रेडिएशन से वेवलेंथ इसका ज़्यादा है। तो इस कारण इसका वेवलेंथ को मॉडरेट रेंज में ही माना जाएगा, बहुत लार्ज नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली स्मॉल टू वेरी स्मॉल टू रेडियो वेव्स।
सो रडार सिस्टम में इसका यूज होता है क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट पाथ को फॉलो करता है सीधे स्टेट ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। इसे टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज होता है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। जैसा कि बताया कि आइनोस्फेयर से भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो माइक्रोवेव्स का यूज रडार सिस्टम में इसलिए किया जाता है कि ये सीधे बिना डेविएट हुए मीडियम पार्टिकल से या अपने पाथ में आने वाले ऑब्जेक्ट से डिफ्रैक्ट नहीं हो पाता है, बेंड नहीं हो पाता है। ये बेंड नहीं कर पाता है। मेन कारण यही है कि माइक्रोवेव्स का यूज रडार सिस्टम में किया जाता है एयरक्राफ्ट नेविगेशन। क्वेश्चन नंबर 14, EM वेव्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर ऑप्शन ए एक्स-रेज, बी गामा रेज, सी अल्ट्रावायलेट, डी इंफ्रारेड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैंसर के ट्रीटमेंट में जो यूज होता है वह है गामा रेज रेडियोथेरेपी में। ऐसे तो एक्स रे का भी यूज होता है, एक्स-रेज का भी यूज होता है रेडियोथेरेपी में। कैंसर ट्रीटमेंट में एक्स-रे का भी यूज होता है, लेकिन जहाँ दोनों ऑप्शन मौजूद है, प्रेजेंट है, वहाँ गामा रेज ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर गामा रेज की जगह दूसरा रेडिएशन होता और एक्स-रेज भी होता तो ऑप्शन ए सही होता। लेकिन यहाँ पर एक्स-रे रेज और गामा रेज है, तो दोनों में बेटर ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट गामा रेज से होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, EM वेव्स यूज्ड इन ग्रीन हाउसेस टू कीप plants warm are option A ultraviolet, B infrared rays, C gamma rays, D X-rays. ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंफ्रारेड रेज। ग्रीन हाउसेस में प्लांट्स को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, चूँकि इंफ्रारेड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड हीट रेज, हीट प्रोवाइड करता है, गर्मी प्रदान करता है इंफ्रारेड रेज, इसलिए ग्रीन हाउसेस में प्लांट को वार्म रखने के लिए इसका यूज किया जाता है इंफ्रारेड रेज का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स एक और मस्कुलर पेन। ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेज, बी अल्ट्रावायलेट रेज, सी माइक्रोवेव्स एंड डी एक्स रेज। ऑप्शन इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स एक और मसल्स एच और मस्कुलर पेन्स। मस्कुलर पेन में इंफ्रारेड रेज का ही यूज किया जाता है। मसल्स में दर्द हो तो इंफ्रारेड लैंप का यूज किया जाता है, जिससे इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट होता है और उससे मस्कुलर पेन में राहत मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ ऑप्शन ए माइक्रोहर्ज, बी मेगाहर्ज, सी गीगाहर्ज, 10⁹ हर्ज that is, and D hertz, only hertz. So microwaves are electromagnetic wave with frequency in the range of gigahertz, 10⁻10 hertz, that is frequency range of microwaves are 10⁻12 hertz to 10⁹ hertz. So gigahertz is the range of frequency of microwaves electromagnetic radiation. Gigahertz, that is 10⁹ hertz. So option C is correct. Now question number 18, which is the last question of this video as well. What is the cause of greenhouse effect? A infrared rays, B ultraviolet rays, C X-rays, D radio waves. Correct option is infrared rays. Infrared, because infrared rays absorbs CO2 and carbon dioxide and ammonia NH3 present in the atmosphere to produce heat, and these radiation that is atmosphere becomes warm due to presence of infrared rays, because infrared rays produces heat. So infrared rays are also called heat rays, and this is the cause of greenhouse effect or global warming. So cause of greenhouse effect is infrared rays. अब इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जितने भी रेडिएशंस हैं उसके बहुत सारे यूजेज हैं।
उन पर भी क्वेश्चंस हो सकता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स के डिटेक्शन में तो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है, या डॉक्यूमेंट्स का पहचान करना हो, डॉक्यूमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन करना हो, सही डॉक्यूमेंट्स का, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स है तो वहाँ भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज होता है। इसके अलावा प्रीसियस स्टोन्स जैसे डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो वहाँ पर भी, उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज होता है। हेज फोटोग्राफी करना हो कुहासे कोहरे धुंध में तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होता है। तो ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के परवेस्ट पूछे जा सकते हैं। या सिल्वर मोबाइल फ़ोन है, सिल्वर मोबाइल फ़ोन तो उसमें भी सिल्वर मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन तो उसमें माइक्रोवेव का यूज होता है। इसके अलावा टीवी रिमोट कम्युनिकेशन में इंफ्रारेड का यूज होता है। तो दीज आर वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ electromagnetic radiations which may be asked as multiple choice questions. यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।